Okay, guys, we'll be starting today's class. We'll be practicing a few questions on the topic limits. The things you have to keep in mind is that you have to read the question very carefully. Then pause the video, try the questions yourself. If you're unable to solve it, then play it and rewatch it again and again if you're unable to understand. Let's move forward. Okay. The first question for today is going to be the question says limit x tends to 0 a to the power sin x minus 1 upon b to the power sin x minus 1. Now, as we have discussed in class, these two terms will be written separately. So I'm going to write it as limit x tends to 0 a की power sin x minus 1. The other term is b to the power sin x minus 1. Now, if over here I have sin x, then I can directly use the formula. So I'll divide it by sin x and I'll multiply by sin x. Now, this thing can be written as what? This is a to the power x minus 1 upon x. Limit x tends to 0. The formula is log e a. So over here it is going to become log e a. So I'll apply that formula. This is going to become log e a. Now over here I'll apply the formula. It is going to become log e b. So this thing can be written as log e a by b. I hope it was clear. Let's move forward to the second. Oh no. This is base changing theorem. B will go over here. So it is going to become log b a. Yeah, this is going to be the answer. I hope it was clear. Let's move forward to the second question. Question 2 is going to be limit x tends to 0 e to the power x minus 1 upon x. Now this is a direct formula. Answer is always 1. Let's move forward to the third question. Third question says limit x tends to 0 a to the power x minus b to the power x upon x. We have discussed this multiple times in the class. It will be limit x tends to 0 a की power x minus b की power x plus 1 minus 1. A की power x and minus 1 will be written together. So I will write it as limit x tends to 0 a की power x minus 1. Then I am going to write these terms minus of b की power x minus 1 divided by x divided by x. This will be written as log e a minus log e b. So it becomes log e a upon b. This is going to be the final answer. I hope everyone has followed till here. Let's move forward to question number 4. Now the next question says limit x tends to 0 a to the power x minus b to the power x divided by e की पावर x minus 1. अब आगे देखेंगे, ये हमारे पास एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है. इन दोनों को सेपरेट करके लिखो. एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम कहता है सेपरेट द फंक्शंस. सेपरेट द फंक्शंस. दोनों फंक्शंस को अलग अलग स्टेप में लिखो. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x और डिनोमिनेटर क्या है e की पावर x माइनस 1. सेकेंड स्टेप क्या है? मेक फार्मूलाज. फार्मूला बनाओ बैठ के. यहाँ पे अगर मैंने x लिख दिया तो ये बन जाएगा और यहाँ पे भी x लिख दूंगा तो ये भी फार्मूला बन जाएगा. अब ध्यान से देखो यार, ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा. इसका आंसर 1 आ जाएगा. ये अभी हमने सॉल्व किया स्टार्टिंग में ही. ये रहा, इसका आंसर आ रहा है लॉग ई ए अपॉन बी. तो ये हो जाएगा लॉग ई ए अपॉन बी इंटू 1. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लॉग ई ए अपॉन बी. दिस विल बी द फाइनल आंसर. आई होप इट वॉज क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगला था फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास. इट सेज ये रहा, लिमिट x टेंस टू 0 log e 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 की पावर x माइनस 1. हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन? इसे अटैक करेंगे हम अपने एल्गोरिदम से. एल्गोरिदम फर्स्ट स्टेप इज सेपरेट द फंक्शंस. सेपरेट द फंक्शंस. दोनों फंक्शंस को सेपरेट करके लिखना है. न्यूमरेटर अलग, डिनोमिनेटर अलग. तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0. दिस विल बी लॉग ई 1 प्लस एक्स और दूसरा क्या है? 3 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स.
अब हम कह सकते हैं ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, इसका आंसर क्या आएगा 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, इसका आंसर आएगा 1/log E3। सो दिस विल बी 1/log E3। आई होप इट वॉज क्लियर टिल हेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6, लेट्स डू दिस वन। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ax/bx। ठीक है यार, ओके। यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो मुझे स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हमारा सबसे एल्गोरिदम का स्टेप क्या होता है? एल्गोरिदम में पहला स्टेप था सेपरेट द फंक्शंस। सेपरेट द फंक्शंस, तो हमें दोनों फंक्शंस को सेपरेट करके लिखना है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax का होल स्क्वायर, दूसरा फंक्शन क्या है bx। अब x को यहीं पे रहने देते हैं, b को अलग से ले जा लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है ना, ओवर हेयर आई हैव स्क्वायर, तो यहाँ पे भी मुझे स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब 2 कब आएगा? जब नीचे x आया, तो ऊपर भी एक x लगाना पड़ेगा। ओके, या फिर दोबारा से देख लेते हैं स्टेप को। देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आ रहा है मेरे पास साइन ax का होल स्क्वायर, bx, x यहीं पे रखा, b को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय x, ये एक x, ये वाला एक x, इन दोनों को साथ में रखेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर, इस x को यहाँ फेंक देंगे, ये हो जाएगा x/b। अब देखो यार, ये जो चीज़ है when x टेंड्स टू 0, ये क्या आ जाएगी मेरा, हमने क्लास में पढ़ा है, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर x/b। x टेंड्स टू 0, तो यहाँ 0 डाल देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 0 इंटू a स्क्वायर अपॉन b। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। आई होप यहाँ तक सबने फॉलो करा। अगर डिफ़िकल्ट लगा तो रीवॉच करो इस पार्ट को। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारे को, हमें सॉल्व करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x। अब ये तो डिफ़िकल्ट हो गया यार, इनवर्स तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। कॉमन सेंस कहती है लेट जो आता है उसमें बदल दो, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अच्छा, अब साइन को इधर फेंको, x हो जाएगा साइन थीटा। अच्छा, x इक्वल्स टू साइन थीटा आ गया। अब ज़रा वैल्यूज़ डाल के देखते हैं क्या हो रहा है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x क्या है साइन थीटा, तो x की जगह लिख दो साइन थीटा। अच्छा, लिख दिया हमने। साइन इनवर्स x क्या है, साइन इनवर्स x तो थीटा है, तो यहाँ पे थीटा लिख दो, वेरी गुड। अब इसमें देखो यार, अगर ये जो मेरा x लिखा हुआ है ये 0 को जा रहा है, इफ़ x इज़ गोइंग टूवर्ड्स 0, तो साइन इनवर्स 0 भी तो 0 की तरफ जाएगा, तो थीटा भी 0 की तरफ ही जाएगा। तो इसका मतलब है देन x इज़ अप्रोचिंग 0, थीटा इज़ ऑल्सो अप्रोचिंग 0। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ना थीटा टेंड्स टू 0, तो बन गया मेरे पास लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो हमें पता है साइन थीटा अपॉन थीटा क्या आता है 1, तो ये आ गया 1/1, जिसे लिख सकते हैं 1। तो दिस विल बी दी आंसर। चलो यार, इसी टाइप का एक और सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़, क्वेश्चन 8। ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x। ओके, अब क्या करें, जो आता है वो करते हैं। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ओके, tan को इधर फेंको, x इज इक्वल टू tan थीटा। अच्छा, x हो गया tan थीटा, तो वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करते हैं। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ डालते हैं। ये हो जाएगा लिमिट, अब tan इनवर्स x क्या है, tan इनवर्स x तो मेरा थीटा है, यही तो हमने सब्सटीट्यूशन लिया, tan इनवर्स x इज थीटा, तो tan इनवर्स x की जगह थीटा लिख दो। ठीक है, x क्या है tan थीटा, x की जगह tan थीटा आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने tan थीटा। यहाँ पे मेरे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 है, अगर x 0 को जाएगा तो थीटा भी तो 0 को ही जाएगा, यहाँ लिख दो थीटा टेंड्स टू 0। और ये तो हमने पढ़ा है tan थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1/1, तो आंसर आ जाएगा 1। दिस विल बी दी आंसर। आई होप एवरीवन हैज़ फॉलोड टिल हियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9, ओके, क्वेश्चन कहाँ गया, एक सेकेंड, मिल गया। चलो
ये वाला क्वेश्चन करते हैं. लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन b की पावर x माइनस 1. एल्गोरिदम लिखेंगे सबसे पहले. तो एल्गोरिदम हमें सिखाता है हाउ टू अप्रोच एवरी क्वेश्चन. एल्गोरिदम ने मुझे सिंपल सा पहला स्टेप दिया, सेपरेट द फंक्शंस. सेपरेट द फंक्शंस, दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर दो. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 और दूसरा है b की पावर x माइनस 1. अगर मुझे दूसरा स्टेप याद है वो है मेक फार्मूलाज. फार्मूलाज की तरह लिख दो इस चीज़ को. फार्मूले में यहाँ पे x आता है, यहाँ पे भी x आता है, तो इसको x से मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड करा, तो x कट जाएगा तो इट विल बी अनचेंज्ड. तो हमने x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा, पर ये हमारा फार्मूला बन गया. फार्मूला होता है log e a और ये हमारा फार्मूला बन गया log e b. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारे पास log b a. दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर. चलो बढ़िया, यहाँ तक हम आ चुके हैं. अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी. यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, x मल्टीप्लाइड विथ साइन पाई डिवाइडेड बाय x. तो सबसे पहले डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन इसमें करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग. डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन में अगर मैं वैल्यूज़ डालता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है? इन्फिनिटी डालो, पाई अपॉन इन्फिनिटी. एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी टेंस टू 0, इट विल बी अ वेरी स्मॉल नंबर. ये होगा ना पाई अपॉन इन्फिनिटी, पाई अपॉन अ वेरी लार्ज नंबर, दिस विल अप्रोच 0. और जब साइन अप्रोचेस 0, साइन के अंदर मैंने जो एंगल डाल रखा है इट इज़ अप्रोचिंग 0. तो ग्राफ देखो क्या होता है, ग्राफ ऐसे बनता है ना साइन का. जब मैं 0 के पास जाऊंगा आउटपुट भी तो 0 के पास ही जाएगा. तो फिर ये चीज़ अप्रोच कर रही है 0 को. और यहाँ पे x क्या है? x इज़ अप्रोचिंग इन्फिनिटी. इन्फिनिटी इंटू 0, अब ये तो मुझे कन्फ्यूजन हो गया. इन्फिनिटी इंटू 0, 0 भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि एनीथिंग इंटू 0 इज़ 0. हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा जब हमने डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करा. डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब इस वैल्यू को इसमें डाल दो. तो हमने बोला साइन ऑफ पाई अपॉन इन्फिनिटी. पाई अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? पाई अपॉन अ वेरी लार्ज नंबर. तो हमने लिखा साइन पाई कांस्टेंट अपॉन वेरी बिग नंबर. बहुत ही बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया तो अंदर क्या बचेगा? वेरी स्मॉल नंबर. वेरी स्मॉल नंबर क्या होता है? अ नंबर टेंडिंग टू 0. तो हो जाएगा साइन अप्रोचिंग 0. जब साइन के अंदर एंगल ही 0 को अप्रोच कर रहा है, बहुत ही छोटा है, तो आउटपुट भी तो इसका क्या करेगा? अप्रोचेस 0. ठीक है, साइन का आउटपुट विल अप्रोच 0. तो ये जो चीज़ है इसका आउटपुट क्या आ रहा है? 0. x क्या है? x इज़ इन्फिनिटी. तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x इंटू इन्फिनिटी इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है आंसर क्या होगा? 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग इज़ 0. लेकिन इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है यार. इतना बड़ा नंबर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन्फिनिटी ही तो होना चाहिए. तो 0 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है. तो ये हो गया हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म. दिस विल बी एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. अब इसे सॉल्व करना तो मुश्किल हो रहा है, तो हमने कहा चलो थोड़ी सी दिमाग लगाते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे. तो मैंने क्या करा? मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिखा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन पाई डिवाइडेड बाय x. ये भी ठीक है. अब ये जो x है ना, मैंने बोला जो मेरा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर मेरे को ये दिख रहा है, न्यूमरेटर को भी x से डिवाइड कर दो और ये जो डिनोमिनेटर है इसको भी x से डिवाइड कर दो. तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय x, x साइन x डिवाइडेड बाय x और डिनोमिनेटर 1 डिवाइडेड बाय x. तो मैंने डिवाइड करा न्यूमरेटर बाई x, डिवाइड करा डिनोमिनेटर बाई x. एक बार फिर से देखते हैं इसी स्टेप को. क्वेश्चन क्या था? लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी. न्यूमरेटर था x साइन पाई बाई x डिवाइडेड बाय 1. मैंने क्या बोला? मैंने बोला न्यूमरेटर को x से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड करो. यहाँ तक ठीक है. अब देखो यार, ये वाला x इस x को काट देगा. बढ़िया. तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बनेगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई डिवाइडेड बाय x होल अपॉन 1 डिवाइडेड बाय x. ओके, न्यूमरेटर को पाई से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को भी पाई से मल्टीप्लाई करो. नाउ व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पाई मल्टीप्लाइड विथ साइन ऑफ पाई बाई x डिवाइडेड बाय ये पाई अपॉन x हो जाएगा.
तो यहाँ आ जाएगा पाई अपॉन एक्स। अब देखो यार, ये पाई तो कांस्टेंट है, इसको लिमिट के बाहर फेंक देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पाई, यहाँ से हटा दो। अब देखो यार, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी टेंड्स टू जीरो, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी टेंड्स टू जीरो, साइन ऑफ वेरी स्मॉल अपॉन वेरी स्मॉल, ये हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, वन। तो ये पूरी चीज़ हो जाएगी वन, बाहर लिखा है पाई, तो आंसर आ जाएगा पाई। दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक बार फिर से देखना, खुद ट्राई करना, नहीं समझ में आता है आई विल आंसर द डाउट्स इन द क्लास। ओके ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। न्यूमरेटर गिवन है हमें एन स्क्वायर प्लस 4n का अंडर रूट, डिनोमिनेटर गिवन है एन क्यूब माइनस 3n स्क्वायर का क्यूब रूट। याद रखो ये क्या दे रखा है, दिस इज क्यूब रूट। ठीक है यार, मैंने एल्गोरिदम पढ़ा रखा है इस सवाल का। जब भी कभी आपको दिख जाए n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो हम क्या करते हैं, हम हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देते हैं। अब देखो यार, हाईएस्ट पावर n स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई है ना, अगर रूट के अंदर स्क्वायर लिखा है तो बाहर आके क्या हो जाएगा, वो बाहर आके सिर्फ n बचेगा। तो इसीलिए जब n स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लग गया तो हाईएस्ट पावर तो सिर्फ n बची ना, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, हाईएस्ट पावर को मैं ऐसे लिखूंगा यार, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी n टू द पावर 1। तो हाईएस्ट पावर 1 हुई ना, तो हमारा एल्गोरिदम क्या कहता है, एल्गोरिदम कहता है बहुत ही सिंपल सा काम करना है। एल्गोरिदम ने कहा हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, सबसे पहला स्टेप डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर इज n से डिवाइड करो, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 4n दिस डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर, इसकी पावर में 1/3 डिवाइडेड बाय n। यहाँ तक क्लियर है, सिंपल स्टेप। अब ट्रिकी पार्ट आता है, ये जो n है इसे अंडर रूट के अंदर भेजना है, ये जो n है इसे क्यूब रूट के अंदर भेजना है। तो मैंने कहा ठीक है यार, अभी हम ऐसा करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या आएगा अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 4n, ये तो अनचेंज्ड है, डिवाइडेड बाय n को अंडर रूट में भेजना है ना, तो इसे लिख सकता हूँ अंडर रूट n स्क्वायर। अंडर रूट n स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट n स्क्वायर n हो जाता है, n ही तो है यहाँ पर, तो n को लिख दिया अंडर रूट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे है मेरे पास n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर, इसकी पावर क्या है 1/3, यह है क्यूब रूट। इस n को क्यूब रूट में भेजना है तो इसे लिख सकता हूँ n की पावर 3 होल पावर 1/3, 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा n ही तो है यहाँ पर। आई होप इट वॉज क्लियर टिल हेयर। अब आगे बढ़ेंगे। अब ये भी रूट n स्क्वायर है, ये भी क्यूब रूट n क्यूब है, इन दोनों की पावर सेम है, इन दोनों की पावर सेम है। अब क्लब कर देंगे, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 4n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब होल पावर 1/3। अब सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 प्लस 4n बाई एन स्क्वायर, ये n स्क्वायर कट गया, 4n बाई एन स्क्वायर ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय, अब देखो यार n क्यूब से n क्यूब कट के 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3n स्क्वायर अपॉन n क्यूब और होल पावर 1/3। ठीक है भाई, अब क्या करूँ मैं, अब देखो यार इस n से इसकी पावर कट जाएगी तो ये क्या बचेगा 4 अपॉन n स्क्वायर से इसकी पावर कट जाएगी, ये क्या बचेगा 3 अपॉन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 4 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 4 अपॉन इन्फिनिटी हो गया 0, 3 अपॉन ये क्या है इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी हो गया 0, अंडर रूट से बाहर निकलेगा 1 एज 1, क्यूब रूट से बाहर निकलेगा 1 एज 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। आई होप इट वॉज क्लियर। इस वाले पार्ट को दोबारा से देखो, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, वॉच अगेन, और फिर खुद ट्राई करना, कॉपी मत करना इसको। आई होप इट वॉज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। चलो यार आज 15 सवाल करेंगे, ठीक है, 15 क्वेश्चंस करेंगे आज, बस 12 करेंगे। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे है हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट 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 1/2 टू द पावर n।
ओके, 2 टू द पावर n तक जा रहा है ये, और n टेंस टू इन्फिनिटी। तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं इस सीरीज़ में, नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर n इन्फिनिटी तक जा रहा है, पावर इन्फिनिटी है, तो इसमें कितने टर्म्स आ गए, इन्फिनाइट टर्म्स। यहाँ पे इन्फिनाइट टर्म्स आ रहे हैं मेरे पास। हमें इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता है। इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है हमारे पास a/1 - r। ये है मेरा फॉर्मूला इन्फिनाइट जीपी का। दिस इज़ a × 1 - r। इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है भाई। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, हाफ, तो यहाँ पे हाफ लिख दो, डिवाइडेड बाय 1 - r। r क्या है मेरा, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो दिख रहा है, हाफ है, तो कॉमन रेशियो हाफ लिख दिया। ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हाफ अपॉन हाफ, ये कट के आ जाएगा 1, तो 1 विल बी माई फाइनल आंसर। दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन। जिसको APGP के फॉर्मूलेज आते हैं वो तो बड़े आराम से इसे सॉल्व कर लेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कोई बढ़िया सा सवाल मिल जाए। चलो मिल गया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 + 7 + 11 ... n टर्म्स। अब यहाँ पे मेरे पास n टर्म्स आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय n²। अब थोड़ा सा हम लॉजिकली सोचेंगे, 3 से 7 4 का डिफरेंस, 7 से 11 4 का डिफरेंस, ये क्या बन रही है, ये बन रही है AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ रही है ना। तो ठीक है भैया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सम ऑफ AP क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, ट्वाइस ऑफ A प्लस n - 1 D। एक एक करके टर्म्स डाल दो। A क्या होता है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 3, फिर n - 1 वो तो यही रहेगा, कॉमन डिफरेंस ये लिखा है ना 4, तो 4 लिख दो, बढ़िया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, तो क्यों ना मैं इन्हें डिवाइड कर दूँ, 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट के 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय n² तो रहेगा ही रहेगा। तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n मल्टीप्लाइड विथ 3 + n - 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 होल डिवाइडेड बाय n²। अब n से इसकी पावर चली जाएगी, तो ये n हटाओ, इसकी पावर हटा दो। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसे सॉल्व करेंगे, 3 + 2n - 2 डिवाइडेड बाय n, 3 - 2 इज 1 + 2n अपॉन n। ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n + 2, n इन्फिनिटी है, 1/∞ क्या हो जाएगा, दिस गोज़ टू 0, सिर्फ 2 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 2। इट वॉज सिंपल। दिक्कत हुई तो ज़रा दोबारा देखेंगे। वैसे आपको इसके लिए सम ऑफ AP का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर वो याद होगा तो आसानी से हो जाएगा। चलो भाई लोग, एक और सवाल देखते हैं यार, कोई बढ़िया सा कलर चूज़ करता हूँ ताकि मज़ा आए लिखने में। चलो, ये वाला कलर अच्छा लग रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 होगा, सो आई विल राइट डाउन क्वेश्चन 14। 14th क्वेश्चन है मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 4x होल की पावर क्या होगी 3x। ठीक है यार, अब देखते हैं वैल्यूज़ डाल डाल के क्या हो रहा है। वैल्यूज़ डाल के मैं ये देखता हूँ कि अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी टेंड्स टू 0, और ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी। 1 में छोटा सा नंबर जुड़ रहा है, 1 प्लस स्मॉल नंबर हो रहा है, 1 प्लस स्मॉल नंबर, पावर में क्या है इन्फिनिटी, 1 प्लस स्मॉल नंबर टेंड्स टू 1, पावर में इन्फिनिटी। तो ये बन गया 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म। इस फॉर्म में हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला कहता है e की पावर में लिख दो लिमिट x टू द पावर इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और दिस फंक्शन मल्टीप्लाइड विद दिस फंक्शन, तो ये हो गया 4/x मल्टीप्लाइड विथ 3/x, x से x कट जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा 12, और ये आ जाएगा हमारे पास e की पावर में 12। दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन, आई गेस कि आप सबने खुद ही कर लिया होगा। चलो यार, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, प्रॉमिस लास्ट, आज के लिए आखिरी सवाल देखेंगे। मिल गया, ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की पावर में क्या आएगा 1/x², 1/x²। ठीक है, अगर मैंने 0 पुट करा बाय डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, देखते हैं क्या होता है। cos x को रखा 0, cos 0 क्या होता है 1, दिस इज अप्रोचिंग 1, 1/0 अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो अप्रोचिंग 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म लग जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे ये वाला फॉर्म लग रहा है,
तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या कहता है मेरे को, फार्मूला कहता है ई लिखो, फिर लिखो लिमिट, यही चीज़ कॉपी कर दो, x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे मुझे फंक्शन लिखना है। अब यहाँ पे मेरे को क्या फंक्शन लिखना होता है, हम लिखते हैं इसे 1 + f ऑफ x। अगर आपको फार्मूला याद होगा, मैंने यहाँ पे 1 + f ऑफ x लिखा था, तो मुझे मिलता है 1 + f ऑफ x इज़ इक्वल टू cos x। तो f ऑफ x क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास cos x - 1। ये है f ऑफ x, तो यहाँ पे आएगा cos x - 1 मल्टीप्लाइड विथ जो ये पावर है 1/x²। यहाँ तक क्लियर है? आई गेस सबने यहाँ तक समझ लिया होगा। अगर नहीं आया होगा देन आई विल रिपीट इट। अब देखो ये हो जाएगा e⁻ लिमिट x टेंड्स टू 0। इनसे माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर लिया तो ये पलट जाएगा, ये हो गया 1 - cos x डिवाइडेड बाय x²। इसका मैंने आपको याद करने का के लिए कहा था, सोल्यूशन होता है हाफ। तो ये आ जाएगा e⁻−1/2 दैट इज़ 1/e⁻1/2 दैट इज़ 1/√e। दिस वॉज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। मैं अब इसे दोबारा से कर दूंगा। एज प्रॉमिस्ड मैं इस सवाल को दोबारा से समझाऊंगा। देखो भाई, सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a 1 + f ऑफ x होल की पावर में g ऑफ x। ठीक है भाई, फिर मैंने बोला था f ऑफ x क्या होता है, दिस टेंड्स टू 0, तो हम लिखते हैं 1 + स्मॉल नंबर और g ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1 + स्मॉल नंबर की पावर इन्फिनिटी आता है, तो ये हम लिखते हैं टेंड्स टू 1 की पावर इन्फिनिटी। देन वी यूज़ द फार्मूला e⁻ लिमिट x टेंड्स टू a, यही चीज़ यहाँ कॉपी कर दी, और फिर f ऑफ x इंटू g ऑफ x करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं f ऑफ x इंटू g ऑफ x। ठीक है, ये फार्मूला सिंपल सा हमें याद है। क्वेश्चन में क्या आ गया, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया उसने, लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की पावर में, उसने कह दिया cos x की पावर में 1/x²। अच्छा भैया, ये है अगर सवाल, तो अब मैं क्या करूँ इसको, मैंने बोला cos x है, लिखना किस फॉर्म में, 1 + f ऑफ x, तो 1 प्लस माइनस कर दो, +1 -1। तो अब ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + cos x - 1 होल पावर 1/x²। ये चीज़ बन गई मेरी f ऑफ x, ये चीज़ है मेरी g ऑफ x। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यार, फार्मूला होता है e⁻ लिमिट x टेंड्स टू 0। अब f ऑफ x ये रहा, कॉपी कर दो, cos x - 1 अपॉन g ऑफ x कॉपी कर दो 1/x²। अब ये हो गया x², इसको नीचे लिख दो इसके, तो ये आ जाएगा दिस थिंग। अब अगर आपको याद होगा, हमने क्लास में एक फार्मूला देखा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x अपॉन x², इसको लिखते हैं हाफ। यहाँ पे तो cos x - 1 है, तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, माइनस बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा e⁻ लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस बाहर लिया, ये हो गया 1 - cos x डिवाइडेड बाय x²। अब इसका तो फार्मूला हमें याद है ना, इसका फार्मूला ये होता है हाफ, तो ये e⁻ -1/2। अब इसमें खेलते हैं थोड़ा सा, यह e⁻ -1/2, नेगेटिव का क्या मतलब होता है, नेगेटिव का मतलब होता है रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा e⁻ 1/2, लेकिन डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है भैया, अब 1/2 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/√e। दिस इज़ गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। आई होप इट वॉज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यार इसी तरह मेहनत करते रहो। इफ़ यू हैव वेटेड टिल हेयर दैट मीन्स यू आर रियली सीरियस अबाउट योर एग्जाम। जस्ट स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड, and you will be able to qualify the exam and get even sponsorship of good companies. I would like to say thank you for watching till here. Make your notes and bye for today.